اور بدیع مدار کے پاس آ کر بولے ہمیں معاف کر دیجیے گا، جونپور سے اگر کوئی سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہم دونوں مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ پنڈت بیگا اور پنڈت گوپال آ کر خواجہ بدیع الدین مدار شاہ زندہ پیر کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے اور سارا جونپور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے تبلیغ، سمجھو اولیاء کرام کو۔ غوث پاک کی بات دور ہے، حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ شاہ عبد القادر جیلانی، اتنے کرامات ہیں اگر میں بیان کرتا بیٹھا تو صبح ہو جائے گی، مگر غوث کے کرامات ختم نہیں ہوں گے، غوث پاک کے کرامات ختم نہیں ہوں گے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، 200 سال پہلے، غوث پاک کی پیدائش کے 200 سال پہلے خواجہ جنید بغدادی جانتے ہیں؟ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے 200 سال پہلے، ابھی پیدا نہیں ہوئے غوث پاک، اپنے شاگردوں کو اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے۔ خواجہ جنید بغدادی اچانک اپنی گردن کو جھکا دیا اور پیشانی زمین سے جا کر لگی اور کہا خرم حاضی علی رکبی، آپ کا قدم میری گردن پر، آپ کا قدم میری گردن پر۔ یہ مرید پریشان، کس کا قدم؟ آپ کی گردن پر۔ جب آپ نے سر اٹھایا پوچھا آپ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو خواجہ جنید بغدادی نے کہا ابھی مجھے القا ہوا ہے، ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج سے 200 سال بعد بغداد میں عبد القادر جیلانی نام والی ایک ہستی منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرے گی کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، جو انکار کرے گا اس کی ولایت چھین لی جائے گی اور جو قبول کرے گا اسے درجے عنایت کیے جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی گردن جھکا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غوث پاک ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات قدس کو سمجھو میرے دوستو۔ میں آپ کے بعد، آپ تو باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسین، باپ کی طرف سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت علی کے بیٹے امام حسن، امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مسنا، حسن مسنا کے بیٹے عبداللہ محض، اور عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ الجون، سید موسیٰ الجون، سید الموسیٰ الجون کے بیٹے ثانی عبداللہ، اور ثانی عبداللہ کے بیٹے ثانی سید موسیٰ، اور ثانی سید موسیٰ کے بیٹے سید محمد، اور سید محمد کے بیٹے سید داؤد، اور سید داؤد کے بیٹے عبد الزاہد، اور عبد الزاہد کے بیٹے ابو عبید اللہ، اور ابو عبید اللہ کے بیٹے ابو صالح چنگی دوست، ابو صالح چنگی دوست کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حسنی تھے، عبد القادر جیلانی، آپ کی کرامتیں اور آپ کی ریاضت، اور آپ میرے عزیز دوستو جو لقب آپ نے پایا محی الدین، دین کو زندہ کرنے کا، چلیے دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا۔ یہی بدیع الدین مدار آپ سے ملاقات کیے تھے جب آپ کی عمر کس کی؟ بدیع الدین مدار کی عمر 138 سال کی تھی اور غوث پاک کی عمر 35 سال کی تھی۔ تب جا کر بدیع الدین مدار غوث پاک سے ملے، کیا ہوا؟ مصیبت۔ ایک شخص، اولیاء اللہ سے کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، ان کو مت آزماؤ، ان کو ٹیسٹ مت کرو۔ جو صحیح ولی ہے، جھوٹے ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں نا جو ولی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ ارے باعث گستاخی فرماتے ہیں اگر پانی پر چل رہا ہے اور وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، اس کو ولی مت سمجھو۔ استدراج ہے، جادو بھی کر سکتا ہے۔ تو غوث پاک کے سامنے ایک شخص اپنی ایک لڑکی کو لے کر آئے اور فرمایا غوث پاک اسے نصیحت کیجئے، میرا بیٹا ہے، میرا اپنا فرزند ہے، روشن ضمیر تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے، جان گے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا۔ جواب میں آگے ہم سے مذاق کرتے ہو، نکلو یہاں سے، تمہارا بیٹا نہیں کہتے کہ تمہارا بیٹا ہے۔ جلال میں آگے آپ اتنا جلال کہ بغداد میں آگ برسنے لگی۔
उसी वक्त बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाह अलैह बगदाद पहुंचे थे। लोग डर कर गौसे पाक के करीब भी नहीं जाते थे, आग बरस रही थी। बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाह अलैह जाकर सामने बैठा, फरमाया ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जलाल को छोड़िए, जमाल को इख्तियार फरमाइए, क्योंकि आपके जद्द अमजद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। तो सरकार गौसे आजम का जलाल कम हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, गौसे पाक ने तालीम के लिए हासिल करने के लिए जो मुशक्कतें उठाई, जो मुसीबतें उठाई, आज हम अपने बच्चों को बीट तक यम तक के लिए भेजते हैं ताकि हमें कमा कर खिलाए, हमारी सेवा करे। मैं कह रहा था कि आलिम की मंजिल अलग है, फकीर की मंजिल अलग है, हमारी मंजिल अलग है, वली की मंजिल अलग है। हम बच्चे को इसलिए पालते हैं कि वो बड़ा हो, जवान हो, नौकरी करे, हमारी देखभाल करे, हमारी खिदमत करे, हमारी पैर दागे। हमारी नीयत बच्चों को पालने की होती है, मगर वली की अपने बच्चे की पालने की नीयत ये नहीं। वो बच्चे को इसलिए चलता है कि दीन के काम है, इसलिए पॉलिश करता है कि दीन के लिए काम है, इसलिए पालता परोसता खिलाता पिलाता है कि वो दीन के लिए काम है। तो हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जो मुशक्कतें उठाई, जो मुसीबतें झेली आपने, मदरसे में जो आप पढ़ते थे, जो वाक़े आपने गुजारे, हम आपको क्या बयान करें मेरे दोस्तों, वक्त नहीं है, मौका नहीं है। चलिए करामत बयान करके गौसे पाक की अपनी बात खत्म करता हूँ। गौसे पाक की बातें कभी पूरी नहीं हो सकती। आपने जो मुसीबतें उठाई, अरे कौन है ऐसा कि साल साल तक पानी पीता नहीं, कौन है ऐसा साल साल तक खाना खाता नहीं, कौन है ऐसा जो 40 साल तक इशा की नमाज की वजू से फजर अदा करता है। सुभान अल्लाह। कौन है ऐसा? गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कब पकड़े भाई? अगर खाजा का दामन मजबूत पकड़ लेते, गौसे पाक का दामन मजबूत पकड़ लेते, खुद को दिन मुख्तार काकी जैसे हो जाते। खाजा नाज़ावती कर जाते, वो पकड़े थे, हम बस मुंह से कहते हैं। हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपकी रियासत 25 साल तक इराक के जंगलों बियाबानों में इबादत करते रहे और नीचे गिरे हुए पत्तों को खाते थे, पत्ते खाते थे। और आप एक दिन जंगल में बैठ गए, या अल्लाह जब तक तू नहीं खिलाएगा मैं नहीं खाऊंगा, जब तक तू नहीं पिलाएगा पानी या प्यास नहीं बुझाएगा मैं नहीं पीऊंगा। बैठ गए। 40 दिन गुजर गए, नाश्ता नहीं कर सका। हो 4 होती फजर की नमाज पढ़ती, वो तस्बीह पीछे ऐसा रख के पढ़ते लक्ष्मी भवन, दुर्गा भवन, 11 की काम आती नहीं। उन्हें पूजा करता, इडली वड़ा डोसा, पूजे के बाद देखा नाश्ता जाकर खाते। वो जायज पेंशन कोना नरसिंह कंडा की भट्टियां आती, वो उससे चटनी पीसते और ये चटनी जाकर बड़े मजे से खाते। वो जायज। तो हुजूर गौसे आज़म बढ़ गया, अल्लाह जब तक तेरा हुक्म नहीं होगा, तू नहीं खिला कर मैं 40 दिन गुजर गए। नफ्स है ना हमारा। सूफी अगर कोई पीर और मुर्शिद का दावा करता है तो वो सूफी है। उसे 2 चीजों की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों, मैं नहीं कहता। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहले अपने नफ्स अम्मारा को मारो, तेरे नफ्स को मार को, तुझे हर ख्वाहिश, हर चीज की ख्वाहिश, हर आराम की ख्वाहिश, तू एक रात जाग नहीं सकता अल्लाह की इबादत के लिए, जिक्र इलाही के लिए तू एक रात जाग नहीं, नींद कुर्बान नहीं कर सकता। तू कैसा मुर्शिद है? तू कैसा पीर है? तू क्या तालीम देगा? सूफी की पहली कैफियत, पहली सिफत ये होनी चाहिए कि वो अपने नफ्स अम्मारा को मारे, अपने नफ्स अम्मारा को मारे, खत्म कर दे उसको। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों के बारे में कहा कि ये ना इनको किसी बात का गम है ना किसी बात का डर, क्योंकि इन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। नफ्स को मार, ये पहली सिफत है। अगर तू सूफी है, तो मुर्शिद है, तो पीर है, तुझे कौन सी ख्वाहिश नहीं है? हाँ? और दूसरी, इंसानियत की खिदमत कर। तेरी दूसरी सिफत क्या होनी चाहिए? इंसानियत की खिदमत कर। मारूफ करफी रहमतुल्लाह अलैह, सलाम, आप उसमें हम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कहते हैं वालेकुम सलाम। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना क्या है? वाजिब है।
100 नेकियां उतरते हैं सलाम करने और जवाब देने वाले के लिए, दोनों के लिए। 100 नेकियों में एक रिवायत से 90 नेकियां पहले सलाम करने वाले को मिलती है और 10 नेकियां जवाब देने वाले को। और दूसरी रिवायत यह है कि 100 नेकियां जो उतरती हैं तो उन नेकियों में से अगर इन्हें खुशी से सलाम किया, दिल से सलाम किया और उसने दिल से जवाब दिया तो 50-50। इसने बेजारी से सलाम किया, अब नहीं करे तो होता नहीं, बुरा मान जाते, दिल में मोहब्बत नहीं, सलाम किया और उसने बड़ी अच्छी तरीके से मोहब्बत से जवाब दिया तो 100 में इसे एक भी नहीं, 100 के 100 इसे समझ में आया। और इसने खुशी से दिल से मोहब्बत से सलाम किया, बेजारी से जवाब इसे क्या जवाब देने का, दिल में सोचा तो उसे पूरा कट 100 के 100 इसे। तो मारूफ कटरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने बताया सूफी की सिफत, पीर और मुर्शिद क्या होना चाहिए। पीर क्या है, पहले अपने नफ्स से मारा को मार, हर ख्वाहिश को, हर आराम को कुर्बान कर, उसका हो जा हर रात। अरे जो रात में सोता है वो वली नहीं है, जो रात को आराम करता है, चैन से सोता है, वली नहीं है। कैसे नींद आएगी उसे अल्लाह की मोहब्बत में। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, यहाँ पर बड़े दूसरे हजार बैठे उनके सामने इस बात जरा से नहीं करना चाहता, मगर मारूफ है काफी, इंसानियत की खिदमत कर, इंसानियत की मदद कर। तो मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह मसला सलाम जवाब सलाम का अच्छा जानते थे। कोई सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप बताएं हमारे लोग बोले हज़रत आपको कितने अदब से, कितनी मोहब्बत से लोग सलाम करते हैं, हाँ वैसे जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। इसका मतलब क्या है, क्यों आप ऐसा करते हैं? आप फरमाते हैं बेटे जब सलाम और जवाब सलाम होता है तो 100 नेकियां आती हैं। जो अच्छे तौर से सलाम करता है 100 के 100 से चले जाते हैं, 90 जाते हैं, और जो जवाब देता है उससे 10 आते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे सलाम करने वाले को ज्यादा नहीं किया जाए, इसलिए मैं ऐसा जवाब देता है। सलामित करता नहीं है क्या, मुझे भी नहीं सलामित करता नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों को उससे पाक बैठ गए, 40 दिन गुजर गए, नफ्स पुकार रहा है, खा लो अब्दुल कादिर जिलानी, खा लो कुछ तो खा लो, ये लेट जाओ तो सही, कुछ तो खा लो, आवाज आ रही है। खिज़र अलैहिस्सलाम चले उधर से, कभी मौका मिला तो खिज़र की हकीकत क्या मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम बोली है नबी है क्या है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम चले, देखिए आवाज आ रही है अंदर से, अब्दुल कादिर क्या है, आप जाइए, यही ये नफ्स से पुकारता है, पुकारता है, क्या क्या नहीं पुकारता, हर चीज की पुकारता है, तकिया देके तो नींद के लिए पुकारता है, अब क्या नहीं पुकारता, जाइए आप जाइए पुकारता है। मैंने जब तक अल्लाह ने खिलागा ये मैं नहीं खाऊंगा, मैंने अहद कर लिया है, वादा कर लिया, आप जाइए चले। थोड़े 2 दिन गुजरे, नफ्स बेचैन है, बेकरार है। हज़रत अबू सईद मुबारक मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह उधर से गुजरे, नजर डाली अब्दुल कादिर जिलानी पर, नफ्स पुकार रहा है, नफ्स की आवाज सुनी, अब्दुल कादिर चलो मेरे घर चलो, मेरे घर तुम्हारी दावत है, समझा ही खिलाएगा, चलो मेरे घर चलो। बुलाए वैसे बात अपनी जगह से नहीं उठे, दिल में सोचा जाऊंगा जरूर, मगर जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। अबू सईद मुबारक मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह गए, अपनी घर की तरफ चले गए और गौसे पाक बैठे रहे। खिज़र अलैहिस्सलाम आए, बोले अल्लाह का हुक्म लाया हूँ, चलिए उठिए, चलिए जाइए अबू सईद मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह के घर। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अबू सईद मुबारक मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह के घर की तरफ चले। घर के दरवाजे पर पहुंचे, क्या देखते हैं कि अबू सईद मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे पर खड़े हैं, चौखट पर खड़े हैं, दहलीज पर खड़े हैं, और गौसे पाक को देखते हैं तो फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, जब तक खिज़र अल्लाह का हुक्म नहीं आए, मेरे बुलाने को नहीं आए, और अब चले आए हो, अंदर ले गए, दस्तरखान बिछाया, रोटी रखी, सालन रखा, रोटी तोड़कर हाजिर